فیصل آباد میں مختلف واقعات میں گولیاں لگنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ تھانہ گلبرگ کے علاقے افغان آباد میں جھگڑے پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ مخالفین نے گولیاں مار کر عبدالرحمان شاہ زیب کو زخمی کیا، فرار ہو گئے۔ تھانہ سرگودا روڈ کے علاقے میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے نوید زخمی ہوا۔ نلے والا جھمرا میں سابقہ دشمنی پر فائرنگ کر کے رمضان کو شدید زخمی کر دیا گیا۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر کے پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے فیصل آباد میں مختلف واقعات میں گولیاں لگنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ تھانہ گلبرگ کے علاقے افغان آباد میں جھگڑے پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ مخالفین نے گولیاں مار کر عبدالرحمان شاہ زیب کو زخمی کیا اور فرار ہو گئے۔ اقبال ڈویژن خطرناک ڈاکوؤں کی آماج گاہ بن گیا۔ خان ماڈل کالونی میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی۔ غلام قمبر نامی نوجوان سامان لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ گلی میں 2 ڈاکوؤں نے غلام قمبر سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے غلام قمبر کو گولی ماری اور فرار ہو گئے۔ نوجوان ہسپتال منتقل۔ اقبال ڈویژن پولیس ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے خان ماڈل کالونی میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی۔ غلام قمبر نامی نوجوان سامان لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ گلی میں 2 ڈاکوؤں نے غلام قمبر سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے غلام قمبر کو گولی ماری اور فرار ہو گئے۔ نوجوان ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اقبال ڈویژن پولیس ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں ناکام۔ ماہ رمضان سے قبل مہنگائی کا جن پوری طرح بوتل سے باہر آ گیا۔ منافع خور اور ذخیرہ اندوز عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ مہنگائی ایسی کہ آڑتیوں نے بھی سر پکڑ لیا۔ انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ آنے سے پہلے ہی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ چیزیں سستی ہونے کی بجائے مہنگی ہو گئیں۔ آڑتیوں کا کہنا ہے کہ چند روز قبل پیاز کا 5 کلو کا تھیلا 800 روپے کا تھا، اب وہ 1300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 700 کے 5 کلو والے ٹماٹر آج 1000 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ سر کل ٹماٹر 700 روپے ਧੜੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਟਮਾਟਰ 1000 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੱਲ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 800 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਕੱਲ ਪਿਆਜ਼, ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 1300 ਰੁਪਏ ਧੜੀ, 1400 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। کیلا، سیب، مالٹا، اسٹرابری اور امرود اور خربوزے کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ پھل کے آڑتیوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کی وجہ سے لوگ سبزی اور پھل زیادہ خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے طلب و رسد میں فرق آتا ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ سندھ سے آنے والا پھل مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ خربوزے کی 14 کلو کی پیٹی 10 روز قبل 1300 روپے کی تھی، اب 1900 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ 3 روز قبل اسٹرابری 2 سے 240 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی تھی، اب 300 روپے سے 400 روپے میں فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ انار کی 10 کلو کی پیٹی 400 روپے مہنگی ہو گئی۔ 4000 والی پیٹی اب 4400 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے۔ آڑتیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کرے تاکہ غریب آدمی کو ریلیف مل سکے۔ ایکچولی بات ساری یہ ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو اس میں نا ریٹیل کسٹمر کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ منڈی سے بھی ظاہری بات ہے کہ ریٹیل جو سیل کرتے ہیں وہ منڈی میں زیادہ مال خریدتے ہیں۔ اب باغات وہی ہیں، سب کچھ وہی ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے رمضان میں، لیکن سیل ڈبل ہو جاتی ہے، اس لیے پھر اس کی پرائز اپ ہو جاتی ہے بیسک۔ عوام پر پہلے ہی بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے بجلیاں گرائی گئی ہیں۔ اب اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھا کر مہنگائی کا جن عوام کو نوچنے لگا ہے۔ پہلے سے پریشان حال عوام دہائیاں دینے لگی۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہونے کے قریب۔ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں نے ایکا کر لیا۔ سبزیاں، پھل، گوشت سب مہنگا ہو گیا۔ پیاز نے شہریوں کے آنسو نکال دیے۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف انتظامی مشینری ابھی سے بے بس نظر آنے لگی۔ جنگ میں منافع خوری نے ہانڈی کو تڑکا لگانا مشکل کر دیا۔ ایک ہفتے میں سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں 100 روپے تک کا اضافہ ریکارڈ۔ پیاز، ٹماٹر، ادرک، سبز مرچ، پودینہ اور لیموں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئیں۔ ضلع انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی نے زائد نرخ طے کر کے شہریوں کو لوٹنے کی کھلی چھٹی دے دی۔ جو دیہڑی دار آدمی ہے نا وہ تو مرنے کے بے در پہ ہے۔ بجلی کے بل اور گیس کے بلوں نے انہوں کا جینا حرام کر دیا تھا، اوپر سے ماہ رمضان آ گیا ہے، اور یہ جناب جو چیز بھی لینے جاتے ہیں وہ بیچارے کا 500 کماتا ہے تو 2000 کے وہ سالن کہاں سے بنائے گا، وہ روزہ کہاں سے کھولے گا؟ اس کے گھر میں تو پھاکے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک امیر آدمی ہے اس کو پرابلم نہیں ہے، لیکن غریب آدمی اس کو تو لاکھوں پرابلم ہے۔
टोबा टेक्सिंग में भी महंगाई का जिन अभी से ही बेकाबू हो गया। सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, दुकानदारों की मनमानी कीमतें, जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। चने 380, दाल माश 580, दाल मसूर 380 रुपए किलो हो गई। बेसन 280, चावल 360, इसी लाल मिर्च 600, हल्दी 800, खजूर 520 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने महंगाई माफिया को नकेल डालने का मुतालबा कर दिया। लोग तो इस ख्याल में बैठे थे कि रमज़ान आ रहा है, कुछ चीज़ें सस्ती होगी, को आवाम को रिलीफ मिलेगा तो वो रोज़े रख सकेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल जारी किया है चीज़ों का, उसके हिसाब से बेचने के बजाय उससे बहुत ऊपर बढ़ गए हैं। कोई चीज़ आवाम की दस्तरस से जो वो नहीं है कि प्याज है वो 300 रुपये किलो है, वो जो गोश्त है वो रेट बढ़ा दिए हैं, दालों के रेट बढ़ा दिए हैं, सब्जी के रेट बढ़ गए हैं। ये तो पहले से भी बढ़ के ये काम आ रहा है। चिनियोट में भी नाजायज मुनाफाखोर माह सियाम से कबल अवाम की खाल उधेड़ने लगे। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। प्याज 55 रुपए महंगा, नई कीमत 235 रुपए फी किलो हो गई। अदरक 520, लहसुन 580, टमाटर 155 और सब्ज मिर्च 230 रुपए किलो पर पहुंच गई। सेब 300 रुपए किलो, केला 120, माल्टा 200 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगा। वाना में भी सब्जियों, फलों, दूध और दही की कीमतों पर 2 गुना इजाफा कर दिया गया। शहरी इफ्तारी का सामान खरीदने सब्जी मंडी जाने वाले शहरियों की कीमतें सुनकर चीखें निकल गई। प्याज 300, आलू 80, अदरक लहसुन 600, सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो हो गई। दूध 180, दही 200, सेब 350 रुपए फी किलो हो गया। समुद्री में भी अशिया खुरोनोश की कीमतों को आग लग गई। अदरक लहसुन 160, टमाटर सब्ज मिर्च 200, प्याज 280 रुपए किलो बिकने लगे। शहरी कहते हैं कि एक वक्त का मिर्च मसाला ही 150 रुपए का बनता है। खजूरें, बेसन और दीगर सामान भी पहुंच से बाहर हो चुका। हुकूमत अशिया सस्ती करके रिलीफ फराहम करे। रमजान मुबारक मुकद्दस महीना है जी, इसमें चीज़ें वैसे तो सस्ती होनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, लेकिन इस महीने में महंगाई का तूफान जो बहुत बड़ा बढ़ चुका है। तमाम सब्जियां, फरूट, दालें, इनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जो अपर लेवल के, जो हाई लेवल के स्टॉक डीलर हैं, उन्होंने सामान को छुपा लिया। कमालिया के शहरी भी सब्जियों और फलों की कीमतों में होश रुबा इजाफे पर परेशान हो गए। माह सियाम से कबल ही अशिया जरूरिया के निरख अवाम की पहुंच से बाहर। कहते हैं हर चीज महंगी हो गई। केला 180 रुपए दर्जन, सेब 300 रुपए किलो मिल रहा है। काम से फौरी नोटिस लेकर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रमजान मुबारक में मिलेंगी सस्ती अशिया। जंग रोड पर मॉडल बाजार फाल, शहरी खरीदारी के लिए उमड़ आए। मॉडल बाजार में सब्जियों और फलों की अशिया खुरोनोश के स्टॉल्स लगा दिए गए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। रमजान में सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी के लिए ज़िले इंतजामिया फैसलाबाद का अहम इक़दाम। जंग रोड पर मॉडल बाजार फाल, शहरी खरीदारी के लिए उमड़ आए। मॉडल बाजार में सब्जियों, फलों और अशिया खुर्दोनोश के स्टॉल्स लगा दिए गए। शहरियों का कहना है कि जंग रोड मॉडल बाजार में मिलने वाली अशिया सस्ती और मेयारी है। उम्मीद है रमजान में अशिया की दाम नहीं बढ़ाई जाएंगी। रहमतों और बरकतों के महीना में सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी नेमत से कम नहीं। अल्लाह का शुक्र है, ये हर अशिया सस्ती हुई है। प्याज सस्ता है, आलू सस्ते हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही सब्जियां सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, हमें ये बस चाहिए, हो कुछ नहीं चाहिए। जंग रोड मॉडल बाजार से शहर के बेहतर इलाकों को सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी यकीनी होगी। कैमरामैन राना दरीश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। महंगाई के सुनामी में फैसलाबाद ताजरों का अहसन इक़दाम। नायब सदर फैसलाबाद चेंबर का मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम। रमजान से कबल ताजर बरादरी नेकियां समेटने के लिए मुतहरक। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर और स्प्रीन अंजुमन ताजरान के सदर असलम वली की जानिब से गरीब गुरबा और मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया गया। राशन पैकेट में 20 किलो आटा और 2 किलो घी शामिल था। मैंने हमेशा 2 चीज़ों को ही इसके ऊपर फोकियत दी है, एक तो आटा और एक घी, क्योंकि रमज़ान शरीफ में जो आम आदमी भी रोज़ा रखता है ना, उसके लिए बुनियादी ज़रूरतों में होता है कि उसको आटे के साथ पराठा मिल जाए, रोटी मिल जाए या घी के साथ को सालन बन जाए। वो दूसरी चीज़ें जो हैं वो लग्जरी में शामिल हो जाती हैं, और अगर जामे शीरीं उसको अवेलेबल नहीं है तो पानी के साथ भी वो गुजारा कर लेगा। असलम वली ने मजीद कहा कि सहरी और अफ्तारी के दस्तरखानों पर सबसे अहम जुज़्व आटा और घी से तैयार शुदा सालन होते हैं, ताकि मुस्तहकीन अफराद खोलने और रखने का बेहतर बंदोबस्त कर सकें। रमज़ान शरीफ से 15 से 20 रोज़ पहले हम अपने इलाके में इर्द गिर्द मोहल्ले में अपने दोस्तों अहबाब के साथ मिल के जो मुस्तहकीन हैं उनके घरों में उसके हम वो गेट पास जो है ना इशू करके तो उनको पहुँचा देते हैं, ताकि वो लेके आएँ। जिस बंदे के पास गेट पास होता है वही आता है और उसको ही हम कंसीडर करते हैं। असलम वली ने कहा कि राशन तकसीम करने का सिलसिला गुज़श्ता 20 साल से जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें बरकत भी बढ़ती जा रही है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद।
झंग में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की मुफ्त तकसीम का मंसूबा। झंग में लगभग 40,000 घरानों में राशन तकसीम कर दिया गया। झंग में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की मुफ्त तकसीम का मंसूबा। झंग में लगभग 40,000 घरानों में राशन तकसीम कर दिया गया। 2,21,982 मुस्तरिक घरानों को राशन बैग्स पहुंचाए जाएंगे। राशन बैग्स की पैकिंग और घर घर तकसीम का अमल भरपूर अंदाज में जारी। राशन बैग में 10 किलो आटा, 2-2 किलो चीनी, घी, चावल और 2 किलो बेसन शामिल। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुफ्त राशन तकसीम का जायजा भी लिया। उधर चनियोट में भी माह सयाम की आमद के पेश नजर इंतजामिया मुतहरक हो गई। रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर अमले की ड्यूटियां लगा दी गईं। रमजान बाजार में सिर्फ एक ही एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर माह सयाम में शहरियों को सब्सिडी मिलेगी। 13 मुख्तलिफ आइटम्स पर शहरियों को मार्केट रेट से 25% रियायत मिलेगी। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से 13 मुख्तलिफ अशिया पर पंजाब हुकूमत सब्सिडी देगी। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के मुताबिक सब्सिडी आलू, प्याज, टमाटर, कद्दू, लहसन, लीमू, सेब, केला, खजूर, बेसन, खरबूजा पर मिलेगी। रमजान बाजार में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया खोरोनोश पर सब्सिडी नहीं होगी। ताहम होल सेल रेट पर ये अशिया दस्तयाब होंगी। माह सियाम में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन एक ग्रोह अल्लाह की दी नेमतों तक गरीब आवाम की रसाई मुश्किल बना देता है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे। बात हो रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ों की, मुनाफाखोर और मिलावट माफिया की, जिन्होंने रहमतों का महीना शुरू होने से पहले ही लूट मार शुरू कर दी है। के आगाज से कबल ही नाजायज मुनाफा खोर मैदान में आ गए। इफ्तारी के वक्त हर दस्तरख्वां का हिस्सा बनने वाली खजूर शहरियों की पहुंच से बाहर। फैसलाबाद के घंटा घर के 8 बाजारों में खजूर के दाम बढ़ गए। अजवा खजूर 3600 और ईरानी खजूर 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। गोजरा में असील खजूर 400, ईरानी 600, मजाफती और अबई 1000 रुपए में फरोख्त होने लगी। बुहाना में खजूर 800 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। गरीब आदमी के लिए खजूर खरीदना भी जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया। उसका मजीद कहना है कि खजूर हर इफ्तार में जरूरी है, मगर महंगी बहुत हो गई। इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम डाले। बढ़ती हुई कीमतों के बायस खजूर की खरीदारी नामुमकिन है। शायद अब नमक से इफ्तारी करना पड़े। हुक्काम बाला कीमत पर चेक एंड बैलेंस यकीनी बनाएं। ਅਸੀਂ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿन ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਆ। 2600 रुपए किलो, 400 रुपए किलो दस रहे ने। फैसलाबाद ईरानी खजूर मेरी 400 रुपए मिल रही है, तो अजवा खजूर 3600 रुपए हैगी। तो हमारी इनसे बहुत ज़्यादा बाहर हम नहीं ले सकते हैं। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत महंगाई बहुत ज्यादा है। खजूर मंडियों से ही जायद कीमतों पर मिल रही है। हुकूमत बड़े व्यापारियों के खिलाफ एक्शन ले तो कीमतें कम हो सकती हैं। रमजान मुबारक करीब आते ही खजूर की माशाल्लाह डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, पिछले साल की इस दफा महंगाई खजूर हुई है, लेकिन क्या करें, पीछे से महंगा आता है, हम आगे सेल करते हैं। पिछली दफा हमने ईरानी खजूर 320 में सेल की थी, इस दफा हम 450 में सेल करें। इसके अलावा मजाफती खजूर हमने पिछली दफा 600 में सेल की थी, इस दफा हम 720 में सेल करें। क्या करें, पीछे से महंगा आता है, हम आगे सेल करते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और दीगर अदारों के अफसरान फील्ड से गायब हैं। अवाम माफिया के हाथों कब तक लुटते रहें, सवाल उठने लगे। कैमरामैन राना इदरीस के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की जानिब से विस्कॉस जान की कमी की शिकायत। महंगी गैस के बायस धागे के शीट्स तैयार करने में मुश्किलात का सामना। सेक्टर को वेस्कोस यार्न की शार्टेज की शिकायत। कंपनी को महंगी गैस के बायस धागे को डाई करने और इसके शेड्स को तैयार करने में दुश्वारी का सामना। सनतकार मियां तारिक ने कहा कि ऐसे में कारोबार सुस्त रवि का शिकार है। आपके तमाम डाइंग यूनिट जो है वो गैस पे कन्वर्ट हो गए। अब गैस की लोड शेडिंग है, गैस जो है इंडस्ट्री को मिल नहीं रही। 2-2 घंटे आती है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, और वो कन्वर्ट हो रहे हैं कोयल पे। तो वो उसके भी इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ उसके वो है तफजात हैं। इस वजह से डाइंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टाइम पे माल मिल नहीं रहा। धागा कंपनियां जो है, अब इसकी डिमांड निकली है, थोड़ा सा कारोबार चलने लगा है, तो इन्होंने मेन जो हमारे शेड्स हैं वो शॉर्ट कर दिए हैं। सनतकारों ने हुकूमत से गैस की कीमतें कम करने की अपील की। गैस सस्ती होगी तो कारोबार बिला तातुल चलेंगे। सनतकारों ने कहा कि धागा कंपनियां अलग अलग रंग के शेड्स की तैयारी के लिए मुतबादल ईंधन इस्तेमाल नहीं कर सकती। धागे पर शेड्स गैस के अलावा किसी और ईंधन से नहीं आ सकते। गैस महंगी होने के बायस धागा कंपनियों ने अपना कारोबार महदूद कर दिया है। हमें तो खदशा ये है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह माजी में भी होता है कि वक्ती तौर पे ये शेड जो है शॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो हमारे मुल्क में कानून नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, हम ही जॉब प्रोवाइडर हैं।
अगर इस तरह का सलूक सौतेली औलाद जैसा सलूक हमारे साथ किया जाएगा तो हम किस तरफ जाएंगे। सीजन आने पर वेस्कोस धागे की तलब बढ़ जाती है और इसका फायदा धागा कंपनियां धागा शार्ट करके उठाती हैं। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ शराज बाट, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई ने मुल्क की खुराक की फराहमी करने के लिए किसानों को भी बुरी तरह मुतासर कर दिया। खाद महंगी और डीजल ने काश्त करनी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। किसान कौंसल ताहिर रज़ाक गुजर का कहना था कि एनर्जी और फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों ने काश्तकारी करना खासा मुश्किल बना दिया है। गंदम समेत दीगर फसलों की खरीदारी की पॉलिसी भी वाज़िया नहीं, जिस वजह से किसानों के मसाइल में इजाफा हो रहा है। एक तो हमारी हुकूमत से ये इल्तिजा है जो खाद माफिया, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि जिम्मेदार को डोर स्टेप पे खादें हुकूमती रेट पे मिल सकें आसानी के साथ। दूसरा, किसानों का कहना था कि हुकूमत को इस सिलसिले में सब्सिडी का ऐलान करना चाहिए ताकि शोबा ज़राअत को संभलने का मौका मिल सके, वरना काश्तकार खेती बाड़ी से बददिल हो जाएंगे। जो नई गवर्नमेंट आई इससे हमारी दरख्वास्त है कि कोई ऐसा ज़रूरी पैकेज अनाउंस किया जाए फुल फॉर, ताकि जिम्मेदार अपनी काश्तकारी अच्छे तरीके से कर सके और आवाम को ज़रिए अजनास सस्ते दामों मिल सकें। किसानों ने फसलों की अमदादी कीमत बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। अगर मुल्क की रीढ़ की हड्डी ज़राअत तरक्की नहीं करेगी तो खुराक की कीमतों में भी कमी नहीं होगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। कॉरपोरेशन इंतजामिया शहरियों को सहूलियत देने में नाकाम। फैसलाबाद में रमजान सस्ते बाजार ताहाल न लगाए जा सके। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद सस्ते बाजार लगाने में नाकाम। शहर में एशिया खुर्दनोश महंगे दामों बिकने लगी। तजावुजात खत्म करने के लिए कोई लाहेअमल तश्कील नहीं दिया जा सका। ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। राहगीरों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पार्किंग कंपनी बनाई गई है, उसका काम था कि वो बाजारों के अंदर इसको मैनेजमेंट के हवाले से बेहतरीन तरीके से इसकी कार पार्किंग करते, लेकिन ये एक खुली बेहंगम इन्होंने पार्किंग की हुई है, जो कि 80 फुट का बाजार है, तो इन्होंने पार्किंग के में ही 60 फुट दोनों साइड पर इन्होंने तजावुजात कायम कर दिए हैं। दुकानदार कहते हैं महंगाई के तूफान में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मसनूई महंगाई, तजावुजात और ट्रैफिक के मसाइल का नोटिस लेना चाहिए। इतवार बाजार भी सहूलियात से खाली हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा है, जबकि आवामी खिदमत सिफर है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद शहर में फेस्को इंतजामिया की नाअहली के बायस खस्ता हाल पोस्ट की तब्दीली ख्वाब बन गई। फैसलाबाद में पुराने और बसीदा खंभों की तब्दीली नामुमकिन हो गई। नड़वाला, धनोला और शेखुपुरा रोड पर खस्ता हाल पोल्स की तब्दीली का मंसूबा ठप होकर रह गया। लड़खड़ाते हुए पोल नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। शहरी फेस्को इंतजामिया से नाला। शहरियों का कहना है कि खस्ता हाल पोल्स नाखुशगवार वाकयात का सबब बन रहे हैं। फेस्को पुराने और बसीदा पोल्स तब्दील करे। 12 मरतबा फेस्को हुकाम को आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। दुकानें शॉप वगैरह इनके आगे लटक रही हैं, बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है। ये माजरत है कि ये वापने वाले से अपील तो हो रही है, बार बार की है, लेकिन नहीं ठीक हो रही। ये खंबे जो टूटे हैं, तारें लटक रही हैं, ठीक होने चाहिए। सिर्फ नए खंबे बारे में मैं कह रहा हूँ, सिर्फ नए खंबे लगाए आप, बस मेरी यही गुजारिश है। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਟ ਆਉਣ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਖੰਬਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਮਕਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ, ये फैसलाबाद का पुरसाने हाल ही कोई नहीं। मिलट आउन दा खास कर कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर भर में खस्ता हाल पोल्स फेस्को की नहली का सबूत हैं। शहरी कहते हैं क्या इंतजामिया फिर किसी मौत के बाद हरकत में आएगी। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। झंग में ठेकेदार ने अदायगी न होने पर उम्मे रुबाब लेडीज पार्क की फिनिशिंग का काम रोक दिया। यह है झंग का उम्मे रुबाब लेडीज पार्क, जो तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनाया गया। फिनिशिंग का काम मुकम्मल ना होने के बायस ताहाल पार्क को ताले लगे हुए हैं, जिस पर शहरी मायूसी का शिकार हैं। फैमिली के साथ यहाँ पे आया हूँ, पार्क का पता चला था नया यानी कि पार्क खुला है, तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन यहाँ बड़े मायूस हो के हम जा रहे हैं। विद फैमिली में आया हूँ, तो मेरी अपील है इंतज़ामिया से कि इसको जल्द जो है ना ओपन किया जाए, ताकि इसमें बच्चे जो हैं अपना एंजॉय कर सकें। लाखों रुपए की अदम अदायगी के सबब ठेकेदार ने फिनिशिंग का काम रोक दिया। उम्मे रुबाब पार्क में मार्बल और बैरूनी दीवार पर सुर्ख गुटके का काम नहीं हो सका। टफ टाइल्स का काम भी गैर एलानिया तौर पर अदायगी साथ मशरूत नजर आने लगा। पार्क का रुख करने वाले शहरी सस्ती तफरीह से महरूम हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी फैमिली के साथ पार्क में घूमने के लिए, लेकिन पार्क बंद पड़ा है अभी तक और मैं यहाँ से मायूस होकर वापस घर जा रहा हूँ। मेरी अपील है कि इसको खोला जाए। नए तामीर होने वाले पार्क को लगे ताले देखकर आने वाले खवातीन इंतजामिया से शिकवा कना हैं। जल्द अज जल्द सैर व तफरीह के लिए खोलने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग।